Hello friends, I am Dr. Rajiv Gupta. I am taking a lecture series on the topic of stereochemistry where I am explaining various types of multiple choice questions related to this topic. This is the part 9 of this lecture series. The question number 15 is, which one of the following can exhibit in optically active forms? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा यानी पाया जाएगा। तो हमें इन सभी कंपाउंड्स की वो फॉर्म्स देखनी है, यानी इस कंपाउंड्स में उस फॉर्म को चूज करना है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होगा। ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स मीन्स a compound which is actually chiral compound and which rotates the angle of plane polarized light. So that compound we call an optically active compound, and this optical activity is purely a experimental property where we get this by a polarimetry experiment. So here various IUPAC names are shown. So first of all we see the first option, cis 1,3-dichlorocyclohexane. So first of all I draw the structure of this molecule. See, all these molecules have cyclohexane, a cyclic 6-membered carbon skeleton. So cyclohexane generally found in its stable conformer, that is chair conformer. So I am drawing this structure. This is the chair conformation of cyclohexane. Now cis 1,3-dichloro, and we know that 1 and 3 cis, that is actually axial or equatorial. Means if two substituents are present at 1,3 position, and if we are saying these are cis, then these could be axial or these could be equatorial. So what could be the structure of these? So suppose I am putting these at equatorial position, because these equatorial positions are more stable. These provide more stability or thermodynamic stability to this molecule. So dichloro, this chloro group is present at this Cl, and here it is Cl. Now we can see that this molecule has a plane of symmetry. Okay, here a plane of symmetry where this chloro and this chloro are becoming mirror image to each other, and whole half portion of the molecule is just mirror image of the half portion. So here a plane of symmetry is present, and we know that compound which contains a plane of symmetry is always a achiral compound, and achiral compounds are always optically inactive compounds. But we have to find out optically active compound. Okay, optically active form. Now second structure, so this option is cancelled out. Now trans 1,3-dichloro. In trans 1,3-dichloro, the attachment is like axial and equatorial. Okay, axial and equatorial. So the structure is this cyclohexane chair form. Now one chlorine atom present at equatorial position and one at axial position. Now this plane of symmetry is lost. No plane of symmetry is present in this compound. So this could be a optically active form because it is a chiral molecule. So obviously this is a optically active form. Now the third is cis. We are checking all the molecules. Third is cis 1,4-dichlorocyclohexane. This is the structure. 1,4-dichloro. Remember, when the substituents are present at 1,4 position, either it is cis or trans, the molecule will always be achiral or optically inactive. Okay, suppose these are cis. Cis means axial equatorial. This is
equatorial and here it is axial. Here a plane of symmetry we can see. So here this compound is optically inactive, so this option also we have removed. Now trans 1,4-dichloro, as I said, it will be removed. Now cis 1,2-dichlorocyclohexane. Now cis 1,2-dichlorocyclohexane. Cis meaning here, cis meaning axial equatorial, that is one chlorine atom at axial position and another is equatorial position. Now this molecule does not contain a plane of symmetry, so it is a chiral molecule and it is optically active. Okay, this molecule is optically active. So only one molecule, this is optically active, so this option should be correct, but actually this option is wrong, because here we know that in cyclohexane system a ring flipping, that is called inversion of ring, is present at room temperature, where this conformer will convert into its anisomeric form. Okay, its anisomeric form means these both anisomeric forms means its mirror image isomer, which is not superimposable over it. Its anisomeric form will present in equal amount in this mixture. So 1,2-dichloro, in case of this compound we see this type of ring flipping. Due to that ring flipping, this axial converts into equatorial and equatorial converts into axial. So that molecule actually mirror image of this actual molecule, and these both, the possibility of the finding the population of these both anisomers will be same, or both will be in same amount. So actually this mixture become an overall optically inactive, but we have to find out optically active forms. So only and only this trans 1,3-dichlorocyclohexane is optically active. Now next question, the compounds whose molecules are shown below would have. So here some properties has been asked. इनके लिए कुछ इनके गुण पूछे गए हैं कि ये जो दो कंपाउंड्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें इनकी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि सेम होगी या डिफरेंट होगी. तो सबसे पहले हम इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन देखते हैं कि ये किस टाइप के आइसोमेरिक रिलेशन दिखाते हैं. ओके, तो आप देखिए इन दोनों कंपाउंड्स में अगर हम इस स्ट्रक्चर को 180 डिग्री प्लेन ऑफ द पेपर में रोटेट कर दें, 180 डिग्री, देखो लाइक दिस, प्लेन ऑफ द पेपर में इस एक्सिस को चूज करके 180 डिग्री रोटेट करते हैं, तो हमको ये स्ट्रक्चर देखिए इस टाइप का मिलेगा. यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ डैश पर आ जाएगा C2, CH2, CH3 और यहाँ नीचे की तरफ आएगा CH3. ओके, तो अभी आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करना है हमको. तो फिशर प्रोजेक्शन में हम 180 डिग्री रोटेशन कर सकते हैं, 180 डिग्री रोटेशन प्लेन ऑफ द पेपर में, तो वो अलाउड होता है. मतलब ये जो हमने रोटेशन करके जो मॉलिक्यूल प्राप्त किया है वो इस पहले मॉलिक्यूल के आइडेंटिकल है, मतलब एग्जैक्टली सेम है. तो अब हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करते हैं कि ये दोनों की दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं या एनीशोमर हैं. तो देखिए ऊपर की तरफ ये दोनों ग्रुप सेम है, दीज आर इथाइल ग्रुप्स, नीचे की तरफ मिथाइल ग्रुप. इस साइड देखिए हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स ये दोनों की दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एनीशोमर हैं, यानी इन दोनों के बीच में एनीशोमेरिक रिलेशन है, बोथ आर एनीशोमर्स. तो एनीशोमर्स में कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेम होती हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं. तो सबसे पहले देखिए कि जो एनीशोमर्स होते हैं जिनमें ओनली 3 डायमेंशन में उनकी जो स्टीरियो है, 3 डायमेंशन में जो उनकी स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशन अरेंजमेंट है, ओनली वो सिर्फ थोड़ा सा चेंज होता है. ओके, तो इन सभी कंपाउंड्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सेम होता है. ओके, यानी क्या कहा गया है, द कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूल्स आर शोन बिलो वुड हैव, सो दीज वुड हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट. इनके लिए मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा. ओके,
दूसरा, इक्वल बट अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशंस, ये भी इसके लिए करेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों एनिसोमर्स हैं, तो इनके लिए जो ऑप्टिकल रोटेशन में, यानी कि जो हमारी थीटा वैल्यू या अल्फा वैल्यू मिलती है ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू ऑप्टिकल एक्टिविटी में, वो उसका मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन उसका साइन दोनों के लिए अपोजिट होगा। तो यही क्या क्या कहा गया है, इक्वल बट अपोजिट, यानी उसका जो साइन है, यानी एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड या उनकी वैल्यू जो है वो सेम होगी। इक्वल बट अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशंस, देन मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी इन ऊपर दिए गए ऑप्शंस में से एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट है। मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ नॉट करेक्ट। सो एक्चुअली मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट, सो वी आर selecting the option D. Now next question, the compounds whose molecules are shown below would have the same melting point, different melting points, equal but opposite optical rotations, more than one of the above and none of the above. The question is same as above. The two compounds are shown. First of all, we have to see the isomeric relation in between these two compounds. So if we see here, total two chiral centers are present in this molecule. This is a chiral center, this is also a chiral center, this chiral center, this chiral center. Obviously at this first chiral center the configuration is opposite, okay. If it is R, then it will be S. If it is S, then it will be R. Now in second, the configuration is same or different. We have to check by using the even change method. If we interchange these two atoms, now we get F, H and CH3. Now we interchange these two. Now CH3, F and H. So obviously the configuration at the second chiral center is same in both molecules. दोनों molecules में यहाँ पर second नंबर chiral center का configuration same है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक चिरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है और दूसरे का सेम है, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर नहीं है, मतलब दोनों आपस में डायस्ट्रियोमर्स हैं। बोथ मॉलिक्यूल्स आर डायस्ट्रियोमर टू ईच अदर, और डायस्ट्रियोमर्स में जनरली मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सेम नहीं होता। इन मॉलिक्यूल्स में मेल्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट होता है, पहली ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी। सो डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स, two diastereomers always have different melting points. Now second, equal but opposite optical rotations, ये कभी भी नहीं होगा कि इनमें कभी भी जो रोटेशन की वैल्यू है, ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू है, वो कभी भी इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मोर देन वन, ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी नहीं। तो ओनली वन ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज़ ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूल्स आर शोन बिलो वुड हैव, अगेन हमको यहाँ पर आइसोमेरिक रिलेशन देखना है और उनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। ये बात ध्यान रखिए आप कि जनरली जो मॉलिक्यूल्स एनिसोमर रिलेशन रखते हैं उनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सी प्रॉपर्टीज़, बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, लेकिन डायस्ट्रियोमर्स में ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हैं। these are not stereo isomers, these are constitutional isomers, because अगर हम इसका IUPAC नेम ले लें फर्स्ट स्ट्रक्चर का, तो साइक्लोब्यूटेन रिंग पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स 1 और 3 पोजीशन पे अटैच हैं, और दूसरे मॉलिक्यूल में साइक्लोहेक्सेन रिंग पर जो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो 1 और 2 पोजीशन पे हैं। दिस इज़ 1,3 डाईहाइड्रोक्सी, या हम कह सकते हैं 1,3 cyclobutane diol, and this is 1,2 cyclobutane diol. So both are positional isomers, where positions of hydroxyl groups are different. So these are constitutional isomers, these are regioisomers, okay. So इस टाइप के कंपाउंड्स में
जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो लगभग सभी प्रॉपर्टीज़ बहुत डिफरेंट होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कभी भी सेम नहीं हो सकता, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा डिफरेंट होगा। इक्वल बट अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशंस, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ये तो बात हम तभी बोल सकते हैं जब ये कंपाउंड्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करें, लेकिन यहाँ पर तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म देख रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है, तो मोर देन वन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता और नन ऑफ दीज भी पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन दैट इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड्स हुज स्ट्रक्चर्स आर शोन बिलो वुड हैव। अगेन हमको दो कंपाउंड्स में आइसोमेरिक रिलेशन देखना है और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता करना है। तो देखिए, जो पहला स्ट्रक्चर है, पहला कंपाउंड है, उसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स, 2 ब्रोमो ग्रुप्स साइक्लोप्रोपेन रिंग पर। दूसरे में भी साइक्लोप्रोपेन रिंग पर 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। दोनों ब्रोमीन एटम्स एंटी पोजीशन पे हैं, यानी ट्रांस पोजीशन पे। इसी तरह से मिथाइल ग्रुप्स भी, यहाँ पर भी दोनों ब्रोमीन और मिथाइल ग्रुप्स ट्रांस पोजीशन पे हैं। लेकिन अब हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच पे एक रिलेशन देखना है कि दोनों की दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम तो सेम है। तो ये आपस में स्टीरियो आइसोमर होना पॉसिबल है। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम इनके बीच में एनिशियोमेरिक रिलेशन देखते हैं, तो उसके लिए इन दोनों कंपाउंड्स का सुपर इम्पोजेबल होना जरूरी नहीं है, यानी ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे, तब ये एनिशियोमर्स हो सकते हैं। ओके, यदि हम इस फर्स्ट मॉलिक्यूल को इस डायरेक्शन में एक 120 डिग्री रोटेट करें, ओके, 120 डिग्री रोटेट करें, तो हमको देखिए क्या स्ट्रक्चर मिलेगी। हम 120 डिग्री रोटेशन कर रहे हैं और जो रोटेशन का एक्सिस है, वो एक्सिस जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है, वहाँ पर हम 120 डिग्री रोटेशन करते हैं। तो देखिए हमको क्या स्ट्रक्चर मिलेगा। ये जो ब्रोमीन एटम है ये रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा ऊपर की तरफ। मीन्स हमको ये ब्रोमीन एटम कहाँ पे दिखाई देगा, हमें ये ब्रोमीन एटम दिखाई देगा इस जगह पे। हियर वी गेट ब्रोमीन एटम। नाउ दिस मिथाइल विल गो टू हियर, वी कैन राइट मिथाइल ग्रुप ओवर हियर। नाउ मिथाइल ग्रुप ये यहाँ जाएगा ओवर हियर, मिथाइल ग्रुप। नाउ हियर ब्रोमीन। तो इस तरह से 120 डिग्री रोटेशन आपको इन मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा 3 डायमेंशन में इमेजिन करना है, फिर आप इजीली रोटेशन कर सकते हो। तो हमको इस तरह से ये और आप किसी मॉलिक्यूल में इस टाइप से कैसे भी रोटेशन कर लो, आप मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं होता, वो आइडेंटिकल ही रहता है। तो ये मॉलिक्यूल और ये जो मॉलिक्यूल हमको मिला है दोनों आइडेंटिकल हैं। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आप कंपेयर करो, देखिए ये दोनों के दोनों आपको मिरर इमेज दिख रहे हैं। ब्रोमीन नीचे की तरफ, यहाँ पे ब्रोमीन, ऊपर मिथाइल ग्रुप, दिस मिथाइल ग्रुप। ये ब्रोमीन एटम इस रिंग के देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है आपको, ये ब्रोमीन एटम ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में। ये मिथाइल ग्रुप इस रिंग सिस्टम के बॉटम साइड में या नीचे की साइड में लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर ये नीचे की साइड में राइट साइड में है। मीन्स ये दोनों के दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। और दोनों की दोनों मॉलिक्यूल किरल मॉलिक्यूल्स भी हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो दोनों की दोनों किरल हैं, यानी कि ये दोनों सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। दीज आर नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, मीन्स बोथ आर एनिशोमर्स। अब एनिशोमर्स की प्रॉपर्टी हमको पता है कि एनिशोमर्स जो भी होते हैं, जो भी दोनों कंपाउंड्स होंगे एनिशोमेरिक फॉर्म्स होंगी, वो उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सेम होता है। दे हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट, बट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट कंसेप्ट हट जाएगा। बट इक्वल बट अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशंस, ये भी करेक्ट रहेगा। तो मोर देन वन ऑप्शन, मोर देन one of these, that is the correct option. Now our correct option is D. Now next question, which of these is a comparatively insignificant factor affecting the magnitude of specific optical rotation? Specific optical rotation पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट डालते हैं, तो हमको यहाँ पर वो वाले फैक्टर्स चूज़ करने हैं जो कि स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं।
तो जनरली टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। अगर हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के सॉल्यूशन के टेम्परेचर को चेंज कर दें तो स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है। बाकी ये स्पेसिफिक रोटेशन किसी और दूसरी वैल्यूज़ पे उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर जो स्पेसिफिक रोटेशन, देखिए दो हमारे पास रोटेशन है, एक तो एंगल ऑफ रोटेशन और दूसरा स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन जनरली ज़्यादातर किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता एक्सेप्ट टेम्परेचर, लेकिन जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो बहुत सी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, जैसे कंसंट्रेशन हो गया, पोलरीमीटर ट्यूब की लंबाई हो गई यानी लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब, पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर हम ये स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट। तो आप देखिए कि स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है उसका फॉर्मूला आप देखेंगे तो क्या होगा, स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अवर ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस सॉल्यूशन एंड लेंथ ऑफ अवर पोलरीमीटर ट्यूब। तो जब इनकी वैल्यू यूनिट वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी तब हमको स्पेसिफिक रोटेशन मिलता है। मीन्स एंगल ऑफ रोटेशन दैट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अवर सैंपल एंड लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब, बट स्पेसिफिक रोटेशन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन एंड दिस। तो कंसंट्रेशन वाला फैक्टर यहाँ से हटा देते हैं। नाउ प्योरिटी ऑफ सैंपल ये भी उतना नहीं प्रभावित करेगा। नाउ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इसको इफेक्टिव करता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पर जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स दैट आर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट रेडिएशन के साथ में कुछ अलग प्रकार से इंटरेक्शन दिखा सकते हैं। साथ ही साथ टेम्परेचर चेंज करने पर उनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है सब्सटेंसेस का वो भी चेंज हो जाता है। नाउ लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब, दिस इज़ द एल, लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब इस पर डिपेंड नहीं करेगा। एंड ऑल ऑफ द अबव आर इक्वली सिग्निफिकेंट, तो ये कंसेप्ट भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ओनली एंड ओनली एक ही फैक्टर है जो कि स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन को इफेक्ट कर सकता है, दैट इज टेम्परेचर। ड्यूरिंग मेजरमेंट what is the temperature of our sample or our solution? Now next question, what can be said with certainty with a compound has specific rotation with a sodium light, monochromatic light, and this sample temperature that is 25 degrees Celsius, it is equals to minus 9.25 degree. This is the angle of this is specific angle of rotation. So what is the question, what can be said with certainty if a compound has this? The compound has the S configuration? No. अगर कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन S है तो उसके लिए जो स्पेसिफिक रोटेशन की जो साइन की वैल्यू है, यानी ये प्लस है या माइनस है, मींस डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लेवो रोटेटरी है, वो एस या आर से डिफाइन नहीं कर सकते। यानी किसी मॉलिक्यूल के लिए, किसी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के लिए हम अगर आर या एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर रहे हैं तो आर एस का इस ऑप्टिकली जो एक्टिव सब्सटेंस है उसके एंगल ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन से कोई संबंध नहीं है। मींस वो डेक्स्ट्रो हो सकता है, वो लिवर रोटेटरी हो सकता है, पर वो एस भी हो सकता है या फिर आर भी पॉसिबल है। मींस देयर इज़ नो रिलेशन। दिस इज़ अ वैल्यू, दिस इज़ अ थिंग विच वी गेट बाय अवर थियोरेटिकल or our structure of molecule, but this is a practical value which we get by our instrument, so there is no relation between these. So यहाँ पर कोई सर्टेनिटी नहीं है कि S जो है वो माइनस होगा या प्लस होगा, R जो है वो माइनस होगा या प्लस वैल्यू में होगा। R कंपाउंड जो है वो माइनस में उसकी वैल्यू मिलेगी या प्लस में मिलेगी। नाउ द कंपाउंड इज नॉट अ मीसोफॉर्म। The compound is not a mesoform, means a compound is a optically active form. So ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको बता रहा है कि उस कंपाउंड के लिए कुछ ना कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी हमको मिल सकता है।
वो ऑप्टिकल एक्टिव की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो यहाँ पर -9.25 डिग्री दिखाई गई है। तो ये तो डेफिनेटली है कि वो कंपाउंड कभी भी मीज़ो कंपाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि मीज़ो कंपाउंड के लिए कभी भी हमको -9.25 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, द कंपाउंड इज़ नॉट अ मीज़ो फॉर्म। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बहुत सही ऑप्शन लग रहा है, मतलब कंपाउंड मीज़ो कंपाउंड नहीं हो सकता, वो कुछ ना कुछ कीरल कंपाउंड है या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। नाउ द कंपाउंड पजेस ओनली वन स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर भी हो सकते हैं, यानी सिर्फ एक स्टीरियोजेनिक सेंटर वाला कंपाउंड जो है वो एंगल ऑफ रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू नहीं दिखा सकता। अगर एक से ज़्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो भी ये वैल्यू आना पॉसिबल है। ओके, तो ये भी यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो नॉट, दिस इज द कंपाउंड हैज़ एन ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ लेस देन 100%। दिस ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ लेस देन 100%, तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम किसी कंपाउंड के लिए ये फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसकी ऑप्टिकल प्योरिटी जनरली 100% ही होती है। जब किसी कंपाउंड की ऑप्टिकल प्योरिटी 100% होगी, मतलब उसमें से केवल एक एनिसोमेरिक फॉर्म ही प्रेजेंट होगी और दूसरी एनिसोमेरिक फॉर्म बिल्कुल 0% होगी, तभी हम उस कंपाउंड के लिए एक सही स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ऑप्टिकल प्योरिटी लेस देन 100% होगी तो उस कंपाउंड को या उस कंपाउंड के प्योर फॉर्म में हम उसका स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। और स्पेसिफिक रोटेशन किसी कंपाउंड का उसके प्योर फॉर्म में स्पेसिफिक रोटेशन होता है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो ओनली द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, वेयर द कंपाउंड इज नॉट अ मीजो फॉर्म। So thank you for listening the lecture.